सुनाई ये दे रहा है? बोलिए। जी बोलिए। मुझे मुझे लगता है मेरी बात भी लगभग पूर्णता की ओर जा रही है। ये कहा गया है कि कभी है खुशी तो कभी गम है, बेहिसाब है। कभी है खुशी तो कभी गम बेहिसाब है। इम्तिहानों से भरी जिंदगी इसीलिए लाजवाब है। और ये बात हम शिक्षकों पे भी लागू होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और भुवनेश्वर जी को विशेष आभार देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। आशा करती हूँ कि आने वाला समय हम शिक्षकों के लिए एक अच्छा समय साबित हो, ताकि हम अपने राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है उसे अच्छे से अदा कर सकें। सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका वक्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार। हमारे बीच में श्री संतराज सिंह जी हैं। आप प्रशासनिक सेवा से संबंधित हैं। सर आग्रह करने पर उपस्थित हैं। अगले वक्ता के रूप में वक्तव्य के लिए मैं श्री संतराज सिंह को आमंत्रित करता हूं। सर आप अपने वक्तव्य से हमें अभिसिंचित करें। श्री संतराज सिंह। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 आ रही है। मैं डॉक्टर रामनारायण तिवारी को 2005 से जानता हूं और ये जो वित्त विहीन तथा कथित वित्त विहीन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी वेदना को, उनकी सरकारों को एक आंदोलन के रूप में लेकर के वो चल रहे हैं और एक बहुत ही लंबा और सघन प्रयास में वो जुड़े हुए हैं। नाउ जो प्रॉब्लम है, एक तो है प्रॉब्लम, वी मस्ट स्टडी द प्रॉब्लम in its depth, and in expansion, now you see, इतना simplistic हम नहीं हो सकते कि you can condemn the government summarily, that's one point, now क्या I just wanted to see कितना इस प्रॉब्लम का क्या मैग्नीट्यूड है। through Google, I found perhaps it is a national problem. All states are having it, so therefore we have a huge problem. Now government has a limited pie, the GDP का कितना हिस्सा गवर्नमेंट एजुकेशन पर दे रही है, दे सकती है, देना चाहिए, all these things are there. Then there is a question of population. All these things, मेरा point ये है कि first of all you must study the gravity and the enormity of the problem, documented, well documented with precise data. That is what point number one. You must fight the problem from all possible angles, Well, you must have your own leader. That's true. If you can. लेकिन अगर आप नहीं भी हैं, तभी भी पार्लियामेंट आपके सामने है. You should ask the parliament questions. See, you must. There are member of parliaments who are always ready to take any genuine issues. I wonder कि कितने parliament question आपने parliament में raise किए हैं इसके ऊपर. दूसरी चीज है press and judiciary. You should tap those things also. Now, I think I'm just trying to be very practical, factual, and not just be sentimental and emotional about the problem, It's really very tragic to listen कि एक टीचर को इतना दिया जाता है, लेकिन why is the teacher feeling compelled कि वहां जाए वो? First of all, can't he search other options? So therefore, what is he really able? What is his ability? There are systems, there are other avenues also. And if you are able, you can knock other doors and get employed. I think there's no compulsion. No, I'm not demeaning the teacher. No, I know that they're very well qualified and all those things. But there is a compulsion upon them. Now, the thing is that you must also look at the regulation. What is the regulation?
Why there is no proper regulation? Why there is no regulation for setting up such institutions? There should be a wage structure, should be well defined. Now, there's so much of loophole. Why are you living in such a loophole status? This must all be studied, pointed out, and fought against, Now, I hope you must be doing all that. You see, we were in government. I was in a scientific cadre, and there too we also felt various kinds of discriminations, I myself was the president of the all-India officers of scientific officers, and we have been fighting for it, in various manners. Now, your fight doesn't go west, apparently it may seem that we are not gaining ground, but if you're fighting with precise data, study, intent, I think you're going to succeed, Now, to say that Siksham Rakshasi hai, I think this indicates a kind of frustration. You have to work with what it is. You see, there is the national pie, GDP is a limited affair, and government cannot go beyond a certain limit. So you must acknowledge their limitation, and there is a huge problem of population. Everybody must be educated. Government cannot do. So the private sector has to be roped in, but they must be regulated. Hello, I hope I'm being listened. Hello. हाँ सुन रहा हूँ. आवाज आ रही है? हाँ आ रही. So therefore, private sector has a role, but it must be properly regulated. Why it is not regulated? This point, how it can be regulated under the existing circumstances, ये कैसे regulate होना चाहिए? इसको आप precisely study करिए अपनी committee बना करके और document बना करके you bring to the notice of all concerned, including Parliament. You see, when we were fighting about our cause, I think I am not going to the nature of cause. We were barging the Parliament with Parliament questions. It didn't come. It is now coming about. I think this present generations of officers are succeeding now for various reasons. Because the things are very dynamic. There's nothing static. आपको frustrate feel नहीं करना चाहिए. आपको problem को thoroughly study करना चाहिए, deeply and with data and facts. And you must take recourse to judiciary, press, Parliament. And if you can send your own representative, there's nothing like that, Now, I just wanted, I was really, एक तो त्रिपाठी जी ने एक बड़ा उदात्त भाषण दिया और जो पैरामीटर्स उन्होंने टीचर्स के बताए, वो शाश्वत हैं. You cannot ignore that कि आज का मॉडर्न में भी आप विश्वामित्र पैदा हो सकते हैं. संदीपनी, विश्वामित्र और वशिष्ठ आज क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? What is it that you are bound to the formal system? There is a formal system and there is an informal system. A good teacher will not remain entangled with the formal system, and he will go and operate, independently, and he will be a true bassist. He can create Ram. He can create Krishna. Why do you undermine your ability, But hello. I think there is problem. Hi. Yeah. Hello. 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 आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? I think the video खत्म हो गया. So therefore, hello. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है. मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, education is a very profound thing, And जो government जो कर रही है ना, you must see कि what government is doing. See, there is great crisis in society. I'm afraid there is no video. I think I'm not able to see anybody. Hello. Hello, sir. सर हम आपको सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं. आप कंटिन्यू आ रही रखिए. है सर. Thank you. जी जी. मैं कह रहा हूँ कि देखिए
समाज में एक क्राइसिस है, and there is a tremendous crisis in society, you know. You see, there is so much of poverty, you know. There is so much of inequity, rich and poor, you know. You see, 80% of the global wealth is just 20% of the people, you know. Somebody is not able to meet his 2 square meals, and somebody is enormously filthy rich. Now, we have created so many problems. We have degraded the environment. I think the soil is so deeply polluted, we will be struggling to produce enough food for our people, you know, in maybe a decade or so. And we are fighting constantly, we are fighting wars. Now, this is the state of affairs, you know, of the globe, of the country, of the whole thing, you know. So the problem is enormous. And this crisis, you know, I think great thinkers have deliberated about this, you know, that this crisis is because of the crisis in education. Because our educational systems are in crisis, and therefore this problem. And educational system is in crisis because teachers are in crisis. No, that's a fact. And this crisis has multiple dimensions. So, well, there might be a certain class of teachers, you know, they are perhaps suffering most. But they are not compelled to be there. They are free to go anywhere, you know, if they can find a better job. But I was seeing that there is no better job as well, so they are forced to be there. So we are caught in a catch-22 situation, and we have got to come out of it. Now, what I was pointing out, you know, that you see, government is not concerned कि आपके fundamentals जो उदात्त बातें जो डॉक्टर नीलम त्रिपाठी ने बताई हैं, government is not bothered about all those things. Essentially, government is concerned कि उसकी फैक्ट्रियां चलती रहें, उसका जो लड़ाई का तंत्र है, जो युद्ध का तंत्र है, आर्मी, फौजें उसके एकदम जीवंत रहे और उसकी ब्यूरोक्रेसी चलती रहे. Government, all the governments, you know, all the governments over the world, you know, over the globe, this is what they're interested. Whatever they may talk for the public consumption, but their only intent is to let their machinery go on as it is going on. Now, well, education is to blame for all this crisis, you know. Now, well, in education, what we are doing, you know, we are only cultivating the intellect. I hope मेरी बात समझ में आ रही है. हम सिर्फ बौद्धिक विकास करते हैं, बौद्धिक विकास की बात करते हैं. बुद्धि हम विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, लिंग्विस्टिक्स में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, we have made enormous progress, you know, and our whole education system is geared for making progress there. Whereas the education का जो real intent है is to create a good human being, a capable human being, a free human being, a harmonious human being, a whole human being जो कि जीवन को समग्रता से देखे, अपने जीवन को वो खंडित न होने देना, उसमें belief system ना हो, higher self and lower self no. No, this is the real intent of education. And I'm sure there are educators who are inspired by these things and they have the ability to do all this. And therefore, if they are feeling suffocated in the formal system, they must opt out and operate on their own. I think society, I have a great trust, you know, society will look after them. Well, I have been a scientist all my career, you know. I'm not a teacher by training, you know. My profession has been of a scientist, you know. I worked there. After retirement, I have been. I felt that if there is anything worthwhile doing in the life, you know, it is education. Now, this I came upon after
great deal of study and contemplation. And I'm doing little bit things, whatever I can do. But knowing the ability and the intellectual heft of many of the teachers, I feel that they can do much better if they function independently in society, you know. Now, I cannot recommend a format, you know. The thinker, the teacher himself has to think over as to what he's going to do, but he can do enormous, you know, rather than feeling frustrated in the system, which is truly very narrow with a limited purpose and not holistic. Therefore, I think it's very बहुत ही पेन करता है कि टीचर इस तरह से महसूस करे, टीचर इतना दूसरे पर निर्भर क्यों महसूस करता है? ये बहुत दिस इज वेरी ट्रेजिक सिचुएशन. टीचर में वो प्रोफाउंडनेस है, वो डेप्थ है, वो एनर्जी है कि he can do anything, I think, and our teachers have demonstrated this. So therefore, this pessimism, you know, we must come out of this pessimism and cynicism and bitterness, and go and look at our role in the true sense, you know, study, devote, lead, and if there is a need to revolt, you know, revolt also. But the revolt, first revolt begins with oneself. You see, जो हम देख रहे हैं, जो समाज जल रहा है, समाज वहां नहीं जल रहा है, समाज मेरे भीतर जल रहा है. जब तक वो अग्नि हमारे भीतर नहीं होगी, तो हम सिर्फ पेसिमिज्म और फ्रस्ट्रेशन और सिनिसिज्म की बात करते रहेंगे. I think from the teachers forum, we should not look, you know, cynical. We must gather the strength to do something great and positive. Well, teacher is not there just to feed information, you know. If your job is only to give information, a computer can do much better than you. Much accurate, much quick, he can do. So therefore, the teacher that you're talking about is not just giving information, you know, but it is to ignite the mind, you know, to create a mind that inquires, not just accumulates knowledge, accumulates. I mean, there must be inquiring mind, you know, a mind that constantly explores new things, and not just accumulative, you know. If it must accumulate knowledge, but it must also be free to explore further. So therefore, now what Dr. Tripathi, Lim Tripathi pointed out, you know, are the fundamental, are of very substantial values, and you cannot set that aside. That is the parameter from which you can derive strength. Now, when you see, one of the school asked me, sir, what should be my motto? I think about 2 years back, you know. Now, I'm not a Sanskrit person, you know, but little bit that I knew, you know, मैंने बोला कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो हो जो मुक्त करे, और जो मुक्त होता है उसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है. So this constant trumpet of pessimism and cynicism, you must come out of it and take the challenge head on and do something profound. Well, I think I have been listening to all these dialogues, and for me it has been very informative, you know. And in fact, इस समस्या को मैंने इतना कॉम्प्लेक्स है कि मेरे पास उतना डेटा नहीं है, उतना रिसोर्सेज नहीं है, neither was I interested कि go into it, you know. लेकिन कई दफा यहाँ पर सुनने के बाद मैंने गूगल से कुछ सर्च करने की कोशिश किया, मुझे लग रहा है कि it's a very enormous problem, and it is a problem of both how much the government can give for the कितना % GDP का वो दे रही है, शायद 2% से भी कम दे रही है,
जबकि उसको 6% देना चाहिए. Now, why it is happening? One must study, not summarily say that they are not doing it. Can they do it? We are such a poor country, that people are not able to meet even the 2 square meals. There are all kinds of limitations are there. तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप समरली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. I know there are limitations. I know there are very corrupt, bad people there. You have to acknowledge the fact. लेकिन करप्ट तो हम खुद हैं, हमारा समाज करप्ट है. जब हम लड़की की शादी के लिए जाते हैं तो हमको दामाद ऐसा चाहिए जो गवर्नमेंट में हो. नॉट ओनली गवर्नमेंट में हो, ये भी पूछा जाता है कि ऊपर झापर का क्या है. वेल, दिस रिवील्स आवर कैरेक्टर. So therefore, we are in a very complex and a very difficult situation. Unless we reform our own self, we cannot point fingers at others. Now, I have all the sympathies for all the teachers who may be suffering like this, but either you be there or you find a better job. But if you be there, organize yourself, study the problem, and take the challenge and fight it out. Well, I think what else needs to be said? See, the very vital intent of education is to create a good human being, a capable, कोई समाज में रह सके, capable in sense कि intellectually, skillfully capable हो और whole, harmonious हो, समाज harmonious हो और whole हो. Whole एक शब्द आता है holy भी, HOLY. So what Dr. Tripathi pointed out कि वो the quality of holiness में आप में होना चाहिए. जब आप में holiness आएगा, you will see you have profound energy. You have enormous energy to deal with any kind of challenge, and you will not be pessimistic. You will not be frustrated. You will not be demoralized. I think I wanted. There is a need to be very brief. I have conveyed my point. With a lot of angst. That was there. You're facing enormous problem, and well, I wonder whether this channel can be used for solving such problems. We are here for a fundamental thinking. I thought when I first came to this channel, I thought we will be deliberating about fundamental issues of life, fundamental issues of the teachers. लेकिन जो practical जो problems हैं, practical problems के लिए, I don't think such forums are appropriate for practical problems. What I suggest that you must study it deeply, thoroughly, be practical, and we be effective. Press में आप लिख सकते हैं, judiciary में आप जा सकते हैं, bureaucracy को आप knock कर सकते हैं, and सबसे बड़ी parliament में आप question उठाइए, और आप हड़ताल भी कर सकते हैं, well, democratic में. But don't feel pessimistic, and I don't. This cynical attitude is something. If you do, it doesn't help you. So therefore, be positive, gather strength, and fight it. And for doing all that, you must know yourself. What are you? What are you first of all? I mean, if you have got petty interest in the mind, you can't gather those strengths. So you must be सा विद्या मुक्त. पहले तो आपको as a teacher free होना है. When you become free, you gather strength, and you can do anything. I think. Well, excuse me for being forthright. And well, this is all that I think is enough for this present moment. Thank you so much for giving me time to share my thoughts. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने वक्तव्य से हमें अभिसिंचित किया. निश्चित रूप से जीवन के विविध कोण है और विविध कोणों को निश्चित रूप से जीने के लिए विविध प्रकार के मार्ग और विविध प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिसको कि पूरा करना बहुत ही आवश्यक है. और इन आवश्यकताओं की पूर्ति में शिक्षक की अहम भूमिका है, और इस भूमिका को शिक्षक निर्वहन करते हैं किसी भी तरीके से. निश्चित रूप से एक विरोधाभास की स्थिति हो सकती है जो कि हमें विविध क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है. ये सिर्फ शिक्षकों में ही नहीं बल्कि हर एक कार्य प्रवृत्ति में देखा जा सकता है. तो जहाँ पर चीजें
संतुलित होने की स्थिति में होती हैं वहां पर कुछ न कुछ विरोधाभास, कुछ न कुछ अवग्रह होते ही हैं। तो आपने अपने वक्तव्य के द्वारा हमें अब सिंचित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर ही आपके वक्तव्य को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि अंग्रेजी मीडियम होने की वजह से चीजों को न समझ पाए। लेकिन डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर से आग्रह है कि आप अगर कुछ सर के वक्तव्य के से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रकाश डालना चाहें तो आपका स्वागत है, डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर। हाँ, मैं 2-3 चीजों पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। एक तो श्री संतराज सिंह इस व्यवस्था को समझे नहीं है। जनसंख्या सिर्फ शिक्षकों के लिए क्यों बढ़ी, दूसरे के लिए क्यों नहीं बढ़ रही? और जीडीपी 6% संविधान में लिखा गया है, जो आज तक ये सरकार 2% भी नहीं देती है। शायद वो समझ जाए कि स्थिति क्या है। सबका 8वां 9वां वेतन लागू हो जाए और किसी का घटते रहे, ये कहाँ का न्याय है महोदय? फ्रस्ट्रेशन है, सच्चाई बताया जा रहा है। और राक्षसी सत्ता मैंने इसलिए कहा कि राक्षस का प्रवृत्ति क्या है? बिना दोष के दूसरे को तंग करे। क्या हो रहा है आपके देश में? आप कहते हैं पार्लियामेंट में उठाए, कौन उठाए? सभी मंत्रियों के कॉलेज है, वो एक समूह बनाकर बिजनेस किए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये षड्यंत्र की तरह शिक्षा चल रही है। एक बात और, आप कहते हैं कि लोग क्यों जाते हैं। हम कहते हैं कि किसी सबकी सर्विस प्राइवेट हो रहा है, अभी बैंक में भी हड़ताल हो रहा है, रेलवे में भी हड़ताल हो रहा है। अब पता लगे कि क्यों जा रहे हैं। हम कहा कि जहां तो पैसा मिलेगा वहीं न जाएंगे, एक आशा से जा रहे हैं। काहे मंत्री के बेटा ही चुनाव लड़ रहा है, उसी के लिए टिकट के लिए भगदड़ मची हुई है, क्योंकि सारे पैसा वहां जा रहा है। जो जन कल्याण की समिति, जन कल्याण की जो योजनाएं बनी हुई थी महोदय, उसको बंद कर दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। आपके लोग जमाना वाला चला गया, क्योंकि आप लोगों को था कि वेतन मिलता था, पेंशन मिलता है। आज जो लड़के पुराने पेंशन के लिए झगड़ा करे, ही बात कोर्ट में सरकार ने भी दी थी कि नई पेंशन में बड़ा लाभ है, तो कोर्ट ने पूछ दिया मंत्री से कि अपने क्यों नहीं ले लेते। बस ये लोग भाग गए, जवाब नहीं दे पाए। तो अभी सच्चाई को जब आप जानेंगे तो लगेंगे कि यहाँ षड्यंत्र में आपकी एजुकेशन चल रहा है। आप एक मंत्री से कोई गार्जियन नहीं पूछता कि हमारे लड़के की पढ़ाई की तुम व्यवस्था क्या करते हो। सड़क, रोड, चंपाकल इसकी करते हैं। जिस देश की शिक्षा को फेंका जाएगा, उस देश का विकास कैसे होगा? आदमी की शरीर मोटा कर दीजिए, दिमाग का पागल कर दीजिए, कितना विकास होगा? सड़क बनाने सबका विकास नहीं होगा, बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होगा, जब पूरे हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हो जाए। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन, आप क्या कहते हैं, क्या इस व्यवस्था में पढ़ाने वाले शिक्षक के लड़के कभी शिक्षक होना चाहेंगे क्या? अन्य विद्यार्थी होना चाहेंगे? तो इस शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। संयोग है कि आपके लड़के बच्चे पढ़ गए हैं। जो नई व्यवस्था में आ रहे, उनसे जरा पूछिए कि स्थिति क्या है। 1.5 लाख के LKG में फिक्स जा रहा है प्राइवेट में। अभी मैंने सुना कि 24 लाख इंजीनियरिंग का फीस तय हो रहा है। क्या साधारण आदमी पढ़ रहा है? हिंदुस्तान के सब लोग इतने विद्वान, इतने धनी नहीं है कि दे पाएंगे। इस व्यवस्था को लेकर मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी ही खराब व्यवस्था है। शिक्षा को आप इनकम टैक्स क्यों देते हैं? जब आप देते नहीं तो 5% इनकम टैक्स सब लोग देते हैं। मोबाइल में भरते हैं, उसको भी एजुकेशन को कटता है। मैं देखता हूँ लड़का जिस दिन जन्मता है 93 पैसा उसी एजुकेशन पर टैक्स पर छपता है। इसको भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। और कौन आपकी आवाज उठाएगा? जरा आज से आप पहल कीजिए, लिखिए कि कोई को आवाज उठा रहा है। कोई नहीं आवाज उठाएगा। कोर्ट से लेकर के पार्लियामेंट तक बिकी हुई है और इस व्यवस्था को षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है। क्यों 5म 7म वेतन लागू हो रहा है? क्यों मंत्री का विकास निधि बढ़ रहा है? क्यों वेतन पेंशन बढ़ रहा है? उसको कम करके एजुकेशन चला दीजिए। अब प्राइवेट में फेंक रहे हैं। क्या एक आदमी सरकार से मजबूत हो रहा है? तो ये खिलवाड़ है। तो इस व्यवस्था को भी आप थोड़ा सा बाकायदे गूगल से पढ़ लीजिए। गूगल पर मैटर नहीं होगा, या डाल दीजिए कि पार्लियामेंट में और एक क्वेश्चन उठवाने में लिए 36 लिया तेल जल जाएगा, कि इन्हीं समूह की व्यवस्था है। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ाइए द्विवेदी। No, I want to say one point, sir.
Yeah. I think you have not at all Yeah. heard कि मैं क्या बोला हूँ. आपने एकदम सुना नहीं है. आपने पार्लियामेंट No, क्वेश्चन I have heard thoroughly, and that is why I have raised the question. You have not studied properly. You would, to what extent government utilize You are- GDP on the education? Only 2%, not more than 2%. पार्लियामेंट क्वेश्चन आपने कोई भी किया है. There are so many MPs ready to take your questions. Do it. Not a single will. They have in one point. They will not raise the question of education system. I know it very well. I have tried 5 times to raise the question in the parliament. No. Being in government, I have done it. Please study and take the problem properly. I think there's no use just properly. I have talked to Radha Mohan Agrawal, Vidhayak of Gorakhpur. He raised the question. He was going to raise the question. When he distributed the paper, Yogi Adityanath objected him and said that if you want to be elected from Gorakhpur, don't raise such kind of question, because Yogi Adityanath manager of 23 college. Well, you see, I think you cannot tackle this problem like this. No, you are suggesting on this suggestion. Please continue. Continue. Let the other speaker speak. Later on, we still discuss on this topic. ओके सर, थैंक यू. आप दोनों का थैंक यू. ये चीजें तो होती ही रहती हैं, और निश्चित रूप से वैचारिकता का जब अंतर्द्वंद होता है तो ये चीजें प्रकाश में आनी चाहिए. उससे तात्विक मंथन उभर करके आता है, और हमें इसको अन्यथा न लेकर के निश्चित रूप से इस वैचारिकता पर रहना चाहिए. हमारे बीच में इस समय है श्री अजीत राज सिंह. अरे उज्जवल राज से बोल भाई. ओके ठीक है. सॉरी, श्री उज्जवल राय जी हमारे बीच में है. बहुत आमंत्रण हमने अब दिया था, तो चूंकि देर से उपस्थित हुए हैं. तो श्री अजीत राय जी जर्नलिज्म में है गाजीपुर के, और आप समय समय पर अपने जर्नलिज्म के माध्यम से नई ताजा तरीन समाचारों सूचनाओं को प्रस्तुत करते रहते हैं. और शिक्षा, क्योंकि आज का विषय है आधुनिक समाज में शिक्षक, तो सर से आग्रह है कि आप आधुनिक समाज में शिक्षक को किस दृष्टि से देखते हैं. श्री उज्जवल राय जी. म्यूट. बातें बता रहे हैं, समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक उसके कई पहलू हैं. अभी सर भी कह रहे थे, और हो जाता है कई बार मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए. समस्या बहुत ही बड़ी है, क्योंकि भारत जो है वो विश्व गुरु कहा जाता था, और गुरु वहां से आया है. और आज जो गुरु परंपरा है वो भी लगातार उसमें क्षरण होता जा रहा है. आप सब मेरे से वरिष्ठ हैं और सभी जानते हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं. लेकिन जो पत्रकारिता के दौरान अपनी खबरों के माध्यम से जो मैंने रिपोर्ट पेश की है, उसके माध्यम से क्या जानकारी सामने आई है, वो आप जब जानेंगे तो ताज्जुब होगा. अगर मैं बात करूं, ये अभी जो कोरोना की दूसरी लहर जो अभी बीती है, अभी तीसरी लहर हम लोग देख रहे हैं, हालांकि ये उतनी प्रभावी नहीं है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान मैंने ठीक लगभग 1 साल पहले ये रिपोर्ट किया था, और वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर के मैंने ये रिपोर्ट की थी. उसमें जब मैंने अपने कुछ न्यूज सोर्स से कहा कि मुझे इस तरीके की स्टोरी करनी है, और आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो वाकई कोरोना में प्रभावित हुए हों, ऐसे शिक्षक, तो उन्होंने खंगाला लोगों को, क्योंकि हम लोग ईटीवी में रहे तो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग करते हैं, जो कि सच होता है. तो काफी खंगाला गया. लोगों ने कहा कि नहीं, हम बोलेंगे सर, बहुत परेशानी है, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. कोरोना के वक्त में शिक्षकों को उनका जो न्यूनतम मानदेय है वो तक भी नहीं दिया. तो कई सारे ऐसे लोग थे जो बोलने को तैयार थे. जब शिक्षक दिवस पे मुझे ये स्टोरी करनी हुई, और मैंने उनको कहा कि आप 2 दिन पहले आ जाइए और इस बारे में हम रिपोर्ट करते हैं. ये पीछे का बैकग्राउंडर बता रहा हूँ. तो रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये बातें कही.
जब मैंने उनको आमंत्रित किया कि आइए और यहाँ पर इंटरव्यू करते हैं, तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। कोई भी एक शिक्षक मैनेजमेंट के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं, वित्त विहीन शिक्षक नहीं, प्राइवेट शिक्षकों का भी यही हाल है, सरकारी शिक्षकों का भी यही हाल है कि बीएसए साहब अगले मीटिंग में बुला न लें। तो ये सूरत थी। तब मैंने फेसबुक पे बड़ा ही निराश होकर के लिखा कि डरपोक भारत के भविष्य निर्माता प्राइवेट शिक्षक, क्योंकि जो शिक्षक हमको मोटिवेशन देता था, जो शिक्षक सिखाता था कि आप सच बोलिए, सच के लिए लड़िए, वो खुद इतना अक्षम हो चुका है कि वो अपने लिए जो अपनी उसकी पीड़ा है वो भी नहीं बता सकता है। तो ये हकीकत थी। और जब मेरा वो पोस्ट कुछ लोगों ने देखा जो कि शिक्षक थे, तो उनको काफी बुरा लगा मेरे पोस्ट से। तो मैंने कहा कि मैं स्टोरी करना चाहता हूँ, आप आइए और स्वागत है आपका, जो समस्या है वो बताइए। तो वित्त विहीन शिक्षक कुल 3 शिक्षक मेरे पास आए, इसके अलावा कोई नहीं आया। और उनकी मैं कहानी आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया, एक शिक्षक, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरी रिपोर्ट भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। उस शिक्षक ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉस्पिटल का बिल चुका सके, खाना तो जैसे तैसे चल रहा था। दूसरे शिक्षक की क्या समस्या थी, और उनका मानदेय, ये तीनों शिक्षकों का मानदेय 5,000, किसी का 6,000, इस तरीके से है, वो भी नहीं दिया जा रहा था काफी महीनों से। दूसरे शिक्षक के भाई की तबीयत खराब हुई, ज्वाइंट फैमिली थी, और इलाज के अभाव में उनका भाई मर गया, पैसा नहीं था, भाई मर गया। तीसरे की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। तो ये शिक्षक की स्थिति है। और इस पे आपने, सर ने कहा, संतराज सर ने कहा कि सदन में कई सांसदों ने उठाया है इस मुद्दे को, आप स्टडी कर लें। तो आप कोट करें कि किन सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे का क्या हुआ है पटल पे, चाहे वो सदन हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सरकार ने उसको लेकर के क्या किया है, पहला सवाल है। और विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धन मापनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। ये श्लोक है, धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म और सुख होता है। लेकिन शिक्षक और विद्या को लेकर के जो श्लोक है, उसके बीच से जब धन गायब हो जाएगा तो सारे आदर्श और सारे आदर्श स्थितियों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस धन अभाव में जब भूखे पेट रहेगा तो कितना भजन होगा, ये सब बेहतर जानते हैं। और जब पहले जो सिस्टम हुआ करता था कि शिक्षक जो है वो राजा से जुड़ा रहता था, उसको किसी तरीके की कोई समस्या बहुत विशेष नहीं उठानी पड़ती थी। हालांकि जो राजा के भले राजपुत्र होते थे वो जा करके वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अभी जो व्यावसायिकरण हुआ है उसमें सरकार को एक बेहतर शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहिए। हालांकि नई शिक्षा नीति आ गई है, लेकिन उसका क्या होगा ये राम मंदिर की तरह राम जाने। तो यही मेरा कहना है। हकीकत जो है ग्राउंड जीरो की, वो बहुत ही दुखद है। उस पहलू पे न सरकार बात करती है, न कोई व्यक्ति विशेष बात करता है, केवल पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति होती है और कुछ और नहीं। हालांकि इस बार सरकार थोड़ी सी शिक्षकों की तरफ झुकाव कर रही है, लेकिन ये केवल चुनाव के लिए है या आगे कुछ होगा, सरकार में बदलाव होगा, ये वक्त बताएगा। तो मैं अपने और वक्ताओं को कहता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। इतनी ही हकीकत थी, और भी हकीकत है जिसको बताया जा सकता है, लेकिन समय अभाव है, कुछ खबरों को बनाना है, इसलिए इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने वक्तव्य के द्वारा कम समय में चीजों को, एकदम हकीकत चीजों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जो लिंक है